عمران خان یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں انہوں نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. ہلکا پھلکا لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا ہے، لیکن ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ پاکستان میں اپنے حق کے لیے ویسے نکلتے نہیں ہیں. یعنی یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو صرف IMF کے کہنے پر پاکستانیوں پر ڈالا گیا ہے. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود پاکستان میں یہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور IMF کی خواہش کے اوپر بڑھائی گئی ہیں. اس میں اوگرا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ نواز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار نے مل کر قیمتیں بڑھائی ہیں. مریم نواز مفتاح اسماعیل کو ڈانٹ دیا کرتی تھیں اور ان کو ٹویٹر کے اوپر بھی احکامات جاری کیا کرتی تھیں. نواز شریف صاحب میٹنگز چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اوگرا کے اوپر غصہ کرتے تھے. یہ سارا کچھ ہوتا تھا جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے، کیونکہ وہ خاندانی رشتہ نہیں ہے، ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق داری ایسی نہیں ہے. تو مفتاح اسماعیل کو ہمیشہ زچ کیا جاتا تھا اور جگہ بنائی جا رہی تھی کہ اسحاق ڈار کو لا کر وزیر خزانہ کی سیٹ کے اوپر بٹھایا جائے. اب اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ مریم نواز نے ایک دن پہلے کہا کہ اسحاق ڈار پہ اعتبار کیا جائے، انہیں موقع فراہم کیا جائے اور وہ ڈیلیور کریں گے. یہ یقین انہیں مفتاح اسماعیل پہ کیوں نہیں تھا؟ یہ یقین انہیں شہباز شریف پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ یقین انہیں باقی لوگوں پہ کیوں نہیں ہے؟ صرف اسحاق ڈار پہ کیوں یقین ہے؟ اسحاق ڈار نے ایکچولی شریف خاندان کی امارت کے لیے، ان کے پیسے کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. جو کیسز موجود ہیں شریف خاندان کے جن کے اوپر پردہ ڈالا گیا ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک بڑا مرکزی کردار تھا ان کے پیسے کو لانڈر کرنے کے لیے. یعنی جو پیسے کی مینجمنٹ ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب کا شریف خاندان کے لیے بڑے اہم خدمات ہیں ان کی. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا پیسہ بچا سکتا ہے وہ پاکستان کو بھی چلا سکتا ہے. یہ بڑی سطحی اور بنیادی سی سوچ ہے. تو وہ اسحاق ڈار صاحب کو نوازنے پر لگے ہوئے اور ان پہ اعتبار کرنے کے لیے پوری قوم کو کہہ رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ ایک ملک کو چلانے کا ہے اور ملک کو معیشت دان چلاتے ہیں، اکاؤنٹنٹ نہیں چلاتے. اسحاق ڈار ایک اکاؤنٹنٹ ہیں، منشی، اور ان سے اب کہا جا رہا ہے کہ آپ معیشت کو چلائیں. تو یہ اس آدمی کے ساتھ ظلم ہے. یعنی ایک گھوڑا اگر 10 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے تو آپ اس پہ 100 کلو کا وزن رکھ دیں گے. اگر وہ نہ چل پائے تو اس کا قصور نہیں ہے، وہ قصور اس شخص کا ہے جس نے اس کے اوپر وہ اضافی 10 گنا وزن ڈال دیا ہے. اب MQM نے ایک بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. MQM پاکستان نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے مطالبہ کر دیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا جانے والا اضافہ فی الفور واپس لیا جائے اور زرعی ٹیکس نافذ کیا جائے. اور اس میں نسرین جلیل ہیں، ڈپٹی کنوینئر ہیں MQM پاکستان کی. انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے سارا بوجھ عوام پر ڈالنا ظلم ہے. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں واپس لی جائیں کیونکہ MQM شہری علاقوں کی جماعت ہے تو وہ شہریوں کے بارے میں ذرا زیادہ سوچتے ہیں. لیکن جب آپ پورے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو زرعی ٹیکس نافذ کرنا اس وقت پاکستان کے کسانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوگا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس لیے کہ ابھی تو سیلاب آیا ہوا ہے. پنجاب کے کسان جو ہیں ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، ان کے گھر بھی بہہ گئے تھے. بہت بڑی تعداد میں وہ کسان ہیں. اب ان کے اوپر اگر زرعی ٹیکس اس وقت لگائے جائیں تو پرابلم ہے. سندھ پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہے انٹیریئر، اور وہاں پہ ابھی تک پانی کھڑا ہے. وہاں کے کسانوں پہ اگر زرعی ٹیکس لگایا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. خیبر پختونخوا کے بہت سارے جو علاقے ہیں وہاں پہ اول تو فصل اتنی زیادہ وہاں ہوتی نہیں، لیکن جہاں ہوتی ہے وہاں پہ حالات آپ کے سامنے ہیں. وہاں پہ بھی کچھ ایریاز میں سیلاب آیا ہے. تو اس وجہ سے زرعی ٹیکس اس وقت لگانا کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے پاکستان میں فوڈ انفلیشن بڑھے گی. یعنی خوراک یا کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اور وہ بوجھ اگر پیٹرول والی سائڈ سے نہیں آئے گا تو وہ بوجھ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے وہ بوجھ پاکستانیوں پہ پڑ جائے گا. اب MQM یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ وہ شہری جماعت ہے. انہوں نے ان علاقوں سے تو انہوں نے الیکشن لڑنا ہی نہیں جہاں پہ کسان ہے، اور وہاں پہ ان کو کسی نے ووٹ بھی نہیں دینا جہاں پہ کسان ہے. تو ان کو لگا کہ دیہی علاقوں میں اگر کسانوں کے اوپر یہ بوجھ پڑ جائے تو شہری علاقوں میں شہریوں کے اوپر سے یہ بوجھ اتر جائے ہمارے کہنے پہ، تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے پاکستان کے شہریوں کے لیے یہ لڑائی لڑی ہے. یہ MQM کی سوچ. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، ذرا اس پہ آپ غور کیجئے. آپ دیکھیں کہ اب اتحادی جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے نقطے اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پہ MQM اور ایک دو جگہ اور سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. اتحادی چھوٹی چھوٹی حرکت کر کے اپنی زنجیر کو چیک کرتے ہیں کھینچ کے، جو زنجیر اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہوئی ہے دوسری جانب سے.
यानी एस्टेब्लिशमेंट ने इन सबको जंजीर से बांधा हुआ है और जंजीर का कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। इसको ऐसे आप समझ लें। अब ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ये छोटी मोटी हरकतें करके अपनी जंजीर को चेक करते हैं थोड़ा थोड़ा कि एस्टेब्लिशमेंट ने जंजीर खुली छोड़ी है या नहीं छोड़ी। जिस वक्त इनको आइडिया हो जाएगा ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब जंजीर खुली छोड़ दी है और इन्हें यह लगेगा कि अब इनको बंदे नहीं रहना इस जंजीर के साथ, तो फिर ये पीडीएम के इत्तेहाद से निकलने की कोशिश करेंगे। और उस वक्त या तो ये बहुत बड़े बड़े फायदे ले लेंगे इत्तेहाद में रहने के लिए, तो या फिर ये पीडीएम का इत्तेहाद छोड़ जाएंगे ताकि ये इंतखाबात के अंदर लोगों का वोट ले सके ये कहकर कि हम इनके गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते। यानी एमक्यूएम और एक दो जमातें और हैं, ये लोग ये कहेंगे कि हमने इमरान खान के जराइम का बोझ नहीं उठाया क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत महंगाई कर दी थी इसलिए हमने उनका साथ छोड़ा, फिर जब पीडीएम ने भी यही किया तो हमने उनका भी साथ छोड़ दिया। तो हम तो अवाम के वफादार हैं, अवाम के लिए हमेशा रहते हैं। हालांकि इमरान खान के साथ भी वजारतों में थे, मौजों में थे, और यहां जरा ज्यादा मिल गया तो फिर यहां आगे वजारतों में थे और मौजों में थे, और जब इलेक्शन करीब आ रहा है तो अब चक्कर दे के निकलने वाले हैं। एक्चुअली तो ये है, लेकिन लोगों को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान को इसलिए छोड़ा कि उसने आपके लिए मुश्किलात पैदा की, पीडीएम को भी इसलिए छोड़ा कि उन्होंने आपके लिए मुश्किलात पैदा की, हम आपके पास दोबारा आ गए हैं और आपका मुकदमा लड़ते रहेंगे। ये याद रखिएगा, जुमले ऐसे ही बोलेंगे एमकेएम वाले और बाकी लोग भी। अगर इनको गेम करने का मौका मिला और इनको महसूस हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने जंजीर ढीली छोड़ दी है, अगर ऐसा हुआ ना तो 3 या 4 इत्तेहादी रह जाएंगे सिर्फ शहबाज शरीफ के साथ। एक पीएमएलएन है, बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी एक और बड़ी जमात है, फजल रहमान साहब की पार्टी वो रह जाएगी, और फिर 1-2 पार्टियां और होंगी तो इनके नंबर्स कम हो जाएंगे। उस वक्त अगर इनको एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा तो ये एतमाद का वोट शहबाज शरीफ नहीं ले पाएंगे, बतौर वज़ीर-ए-आज़म फारग हो जाएंगे। एतमाद का वोट लेने का उस वक्त उनके पास सिर्फ एक रास्ता होगा, और वो रास्ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 23 मुनहरिफ अरकान हैं, उन्होंने जो अपना पार्लिमानी लीडर आज खुद बनाया हुआ है, जो मामला अदालत में चैलेंज होने जा रहा है, वो जो आज खुद उन्होंने अपना पार्लिमानी लीडर बनाया हुआ, उसके हुक्म पे वो सारे शहबाज शरीफ को जाकर वोट डाल दें। और जब वो सारे जाकर शहबाज शरीफ को वोट डाले तो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेकर बच जाए। तो इस तरह होगा क्या, बल्ले के निशान पे मोहर लगे हुए जो वोट हैं वो शहबाज शरीफ को पड़ जाएंगे। यानी पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को जो वोट डाले थे, वो जिन नुमाइंदों के थ्रू इमरान खान तक पहुंचने थे, वो नुमाइंदे उन वोटों को शहबाज शरीफ के आगे सरेंडर कर देंगे या सेल कर देंगे, आप ऐसे कह सकते हैं। बहरहाल ये जो मुनहरिफ अरकान या लोटे हैं, ये 23 लोग शहबाज शरीफ के बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि अब पार्लियामेंट्री पार्टी इनके कंट्रोल में है और पार्लियामेंट्री पार्टी में टोटल बंदे ही चंद रह गए, 25 एक बंदे रह गए, 23 बंदे तो सीधे सीधे लोटे हैं, और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फारिग कर दिया गया है। अब एक रास्ता और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को अदालत में चैलेंज कर रही है। अदालत के अंदर अगर यह फैसला आ जाता है कि जो आखिरी 43 इस्तीफे मंजूर हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो गलत हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना पार्लिमानी लीडर बन जाएगा, और वो पार्लिमानी लीडर जब हुक्म देगा तो ये जो लोटे हैं या मुनहरिफ अरकान हैं, ये भी जाकर शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर डालेंगे तो काउंट नहीं होगा और ये डी सीट भी हो जाएंगे, इनकी सीटें भी फारिग हो जाएंगी। तो इस तरह शहबाज शरीफ फारिग हो जाएंगे। मामला फिर अदालत के अंदर ही जाना है। अदालत को यह फैसला करना है कि ये जो आखिरी इस्तीफे मंजूर किए स्पीकर ने, ये अपने इस्तीफे वापस ले चुके थे, ये इलेक्शन कमीशन को भी जाकर कह चुके थे, ये तहरीरी तौर पे स्पीकर के ऑफिस को भी आगाह कर चुके थे, तो इनके इस्तीफे आईनी तौर पे मंजूर नहीं हो सकते। इनका ये मौकिफ है। ये मौकिफ लेकर ये लोग अदालत के पास, और अदालत अगर ये कह देती है कि इनका मौकिफ ठीक है, तो फिर पार्लियामानी लीडर इमरान खान साहब का, और जब पार्लियामानी लीडर इमरान खान साहब का, तो एक इत्तेहादी निकला और शहबाज शरीफ गए। अब इत्तेहादी अपनी जंजीर सिर्फ चेक कर रहे हैं और ये सारी गेम आनन फानन हो जाएगी जिस वक्त ये होनी होगी। सिर्फ इतना सा होना चाहिए, या जिस चीज का इंतजार है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को हकीकतन इस सारे गंदे खेल से बाहर ले जाए और वो कहे कि जो आपने करना है करें, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना है, मिलकर बैठे बात करें, जैसे करना है आप लोग करें, हमें इसमें से बाहर निकालें। आज अगर पीडीएम को यह पता चल जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ छोड़ दिया है, तो वो इमरान खान के साथ बैठकर अगले इंतखाबात के लिए बातचीत भी कर देंगे। उन्हें सिर्फ इस बात का जोम है कि हमारी हुकूमत को गिरने नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने हमारी हुकूमत बनाई है वो इमरान खान से नफरत करते हैं, लिहाजा वो इमरान खान के खिलाफ हमारी हुकूमत को कायम रखेंगे। इसी जोम में वो बातचीत नहीं करते और इलेक्शन की तरफ आने का नाम ही नहीं लेते। अब आ जाए जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से एमकेएम का मुतालबा है, यह मुतालबा पाकिस्तान भर से सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और वजीर खजाना ने यह कहा कि माशी बहरान हल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। बातें तो आप बहुत करते थे कि 70 रुपए का पेट्रोल देंगे,
₹72 तो आप पेट्रोल के ऊपर सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, ₹250 का पेट्रोल कर दिया, ₹262 का डीजल कर दिया। बातें तो बड़ी की थी कि डॉलर ₹100 का कर देंगे, डॉलर को उठा के ₹250 पे ले गए, और अब सुना है जब वर्किंग डे शुरू होगा तो डॉलर मजीद ऊपर चला जाएगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है और हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। अखराजात अपने कम नहीं कर रही मौजूदा हुकूमत। शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का काम यह था कि वो शहबाज शरीफ को बताए कि अपने अखराजात हुकूमत कैसे कम कर सकती है। उस कमेटी ने सबसे पहले काबीना का कहा था कि इसके ऊपर से जो 47 बंदे हैं ना वो तो उड़ा दें आप फौरन, यानी 77 में से 47 उड़ा दें, 30 बंदे बहुत होते हैं, इतनी काबीना आप रखें। फिर काबीना के अखराजात भी कम करें। फिर उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के अखराजात कम करने का कहा, उनकी तनख्वाहें भी कम करने का कहा, और भी बहुत सारी उन्होंने तजावीज़ दी हैं। लेकिन यहां पे उल्टी गंगा बह रही है। यहां पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको सियासी रिश्वत के तौर पे स्कीमें दी जा रही हैं अरबों रुपए की। अब वो फिगर जो है वो 90 अरब रुपए तक पहुंच गया है। शहबाज शरीफ साहब का जो लाहौर वाला कैंप ऑफिस है उसके लिए 12 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। ये शहबाज शरीफ साहब का यानी सिक्योरिटी आलात उससे लिए जाएंगे, ये खबर आई है। और काबीना के जो अखराजात हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है, यानी देखिए तारीखी काम किया उन्होंने। पेट्रोल तारीख का सबसे महंगा, डॉलर तारीख का सबसे महंगा, काबीना तारीख की सबसे बड़ी, हुकूमत के अंदर इत्तेहादी तारीख में सबसे बड़े, और नाकामियां तारीख में सबसे बड़ी, यानी हर चीज के अंदर उन्होंने तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई तारीख में सबसे ज्यादा, और पाकिस्तान की ग्रोथ जो नेगेटिव हो रही है वो भी तारीख में सबसे बदतरीन। यानी जितने काम इन्होंने किए हैं एक नई तारीख रकम की है शहबाज शरीफ साहब ने और बेड़ा गर्क किया है। और काबीना के अखराजात में 39% इजाफा हुआ है। यह बात सामने आई है कुछ खबरों में कि 39% इजाफा काबीना के अखराजात में शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है उसमें हो गया है। दूसरी जानिब जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू की असद उमर साहब ने, इन लोगों ने एक तहरीरी बयान पढ़ा है और बड़े डिस्कशन के बाद बयान बनाकर लाए थे। उन्होंने कहा कि सदर और सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान की तवज्जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर दिलाना चाहते हैं, जिन्होंने बयान दिया था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख एजेंसियों एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है, सियासी मामलात में बढ़ती हुई मुदाखलत का फौरी नोटिस लिया जाए। यानी अब आप समझ जाए वो क्या कह रहे हैं। पीटीआई रहनुमा ने मुतालबा किया कि सदर मुमलिकत रहनुमाओं को धमकी अमेज कॉल्स और तशद्दुद का नोटिस लें, चंद काली भेड़ों से बाज पुरस की जाए, जिसकी निशानदेही पीटीआई और आजाद मीडिया करता रहा, क्योंकि ऐसे इकदामात से नहायत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ऐसे इकदामात से मुल्क के बैरूनी दुश्मनों के अज़ाइम को तक़वियत मिल रही है। सदर मुमलिकत इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस लें। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए कल पटिशन फाइल कर दी जाएगी। हम अदालत में अवाम का मुकदमा लेकर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का आईन खतरे में है। नाज़रीन, एक खबर जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से भी है, और ये एक और इंपॉर्टेंट खबर है। वो ये है कि शेख रशीद अहमद साहब क्योंकि लाल हवेली में रहते हैं, शुरू से उनकी सियासत रावलपिंडी की लाल हवेली से जुड़ी है। लाल हवेली एक बड़ी तारीखी इमारत है। अगर आज कोई इस तरह का वाकया हो जाता है तो हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे कि एक्चुअली लाल हवेली है क्या, इसकी तारीख क्या है और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। तो शेख रशीद ने अपनी पूरी सियासत को लाल हवेली के साथ जोड़ा है। लाल हवेली को लोग अब शेख रशीद की वजह से जानते हैं और शेख रशीद को लोग लाल हवेली के साथ जोड़कर जानते हैं। और ये चंद मरले की छोटी सी जगह है, लेकिन शेख रशीद के मुखालिफिन हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि उनसे ये छीन लिया जाए। बहरहाल वो ये कहते हैं कि उनके पास इसके कागजात मौजूद हैं और उनका ये दावा है कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरे खिलाफ नाअहली का केस दायर किया जाए और अदालत में साबित किया जाए कि मैं गलत बात कर रहा हूं और मैंने कब्जा किया हुआ या मैंने झूठ बोला है। शेख रशीद के खिलाफ एक ऑपरेशन मुतवक्के है, लाल हवेली को गिराने की भी बातें हो रही हैं, जबकि शेख रशीद का यह कहना है कि लाल हवेली के ऊपर कोई हॉलीवुड में कोई मुआहदा हो रहा है और वहां पे एक फिल्म बनाने की पेशकश आई है कि वो लाल हवेली को लेकर एक बड़ी अहम फिल्म बनाना चाहते हैं रावलपिंडी में आकर। तो शेख साहब जो हैं वो एक बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं। लेट्स सी रावलपिंडी में आज का दिन कैसा गुजरता है। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया, उनकी पार्टी ने, कि कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही उम्मीदवार होंगे और वही यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। यानी एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अच्छा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनते जा रहे हैं और बनते रहेंगे, लेकिन एक चीज बड़ी अजीब है। एहसन इकबाल अच्छे खासे समझदार आदमी है, उन्होंने आज फिर स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इसकी वजह इमरान खान है। ये मुझे हैरत होती है कि थोड़े दिन पहले जब कम की थी तो वजह इसहाक डार था, अब बढ़ी है तो वजह इमरान खान है। इसहाक डार ने आकर जब डॉलर को 10 रुपए सस्ता किया था तो वजह इसहाक डार थे, और अब जब डॉलर दोबारा बढ़ गया है तो वजह इमरान खान है।
हाउ इज इट पॉसिबल? यानी अगर 1 रुपए का भी फायदा होगा तो वो इसहाक डार की वजह से होगा, और अगर 4 आने का भी नुकसान होगा तो वो इमरान खान की वजह से होगा। ये मंतक पाकिस्तानियों को समझ नहीं आएगी, और वो इतने बेवकूफ नहीं है, आपने पता नहीं कहां से तालीम हासिल की और कहां पढ़ाते रहे, मेरी तो समझ से बाहर है। नाज़रीन, अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।